As a pioneer allied health trainers in India, a charitable non-profit organization, and the first ISO 9001-2000 certified training institute of India, the Institute of Public Health and Hygiene is one of the oldest, most distinguished and comprehensive institute. I welcome you all to the India's first ISO 9001-2000 certified training institute and the institute which is internationally accredited all over the world. At our institution, we provide training to the people who are interested in working for the mankind and serving the mankind by providing treatment and other medical facilities in the hospitals and other healthcare establishments. We have been training students from Ministry of Defence, DGR, Government of India and various state governments from India, and we have students from international lobby also, that is from Nigeria, Sudan, Bangladesh, Bhutan, Pakistan, Myanmar. Apart from these, our students have been successfully working in Gulf countries and in India also. Institute is located on a very prime location. Place is known as Mahipalpur and is very close to expressway connecting Delhi to Gurgaon and has a very close proximity to the airport. Found in 1976, with a view to provide trained allied health professionals. Since inception, the institute is providing trained manpower to the healthcare industry around the globe in allied health sciences by providing degree and diploma trainings in medical labs, radiology, ultrasonography, dental, physiotherapy, ophthalmology, biotechnology, public health education, and a name of few. The institute is training students from Indian Airlines, Ministry of Defence, Ministry of Social Justice and Empowerment, IGNOU, AIMS, RIMS, Bhutan, Nepal, Myanmar, Nigeria, Saudi Arabia, Jordan, Sri Lanka, UNHCR, UNICEF, WHO, and students from State Government of India. The Institute of Public Health and Hygiene has a multi-campus institutional block comprising the academic block, the training block, and the hospital. The Department of IT has P4 processors working on the latest computer technologies with Linux. The Department of Dental Sciences has the latest modern computerized machines, lab facilities, and denture making facilities. The Department of Biotechnology has latest machines like the DNA maker, the PCR, and other latest computerized equipments. The Department of Radiology has X-ray units with fluoroscopy, mobile X-ray units, and dental X-ray units. The Department of Ophthalmology has ophthalmic surgical operating microscope and machines like the keratometer. The Department of ECG is equipped with adequate number of BPL and Wipro ECG machines. The Department of Physiotherapy is equipped with state-of-art computerized and manual physical therapy and rehabilitation instruments
to render all sorts of services to the disabled patients and train the students with clinical exposure. The Department of Pathology has latest machines for histopathology, microbiology and serology. The Department of Laboratory Technician has well-established lab facility where the students can perform their chemical experiments with the different testing practices fully loaded with the best of tools for the students. The Department of Ultrasonology of the Institute is equipped with the latest ultrasound machines for the training and for the use in hospital mobile clinic. The Department of Pharmacology is equipped with the latest and modern instruments and equipments used for manufacturing of drugs, etc. Equipped with extensive hard copies and online search material, the spacious library is modern and up-to-date and boasts a book collection of over 20,000 books and over 3,000 periodicals. Subscriptions in various formats with separate CD section. Professional librarians, support staff are also available to assist the students. The Institute has a Rural Community Health Center, a charitable multidisciplinary hospital for the poor. The Institute has an in-house hospital to provide the students with a real-time environment of health and patients and diseases. The students deal with real patients and are trained to have a human and civic touch in their practice. The IPH&H also has a placement cell. Headed by professionals, the Institute has also developed placement cell to provide assistance for higher studies and placement assistance to its alumni by providing placement opportunities in government, semi-government and private institutions within India and abroad. The placement cell has successfully placed approximately 20,000 students in overseas jobs and approximately 13,000 students in India.
The institute has had many events in the past. 32nd HIV and AIDS conference at FICCI. As a part of the community welfare projects, the institute is organizing HIV and AIDS conferences on national level from time to time. दोस्तों, आज बात करेंगे गांव रोजगार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की। अब जमाना आ गया है स्वरोजगार का। आपके शहर, आपके गांव और आपके कस्बे में, आपके आसपास के नर्सिंग होम में, पैथोलॉजिकल लैब में, स्वास्थ्य केंद्रों में ज़रूरत पड़ रही है बहुत ज़्यादा संख्या में पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की। क्या है इनमें नए अवसर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिस्टो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने वाले इन स्टूडेंट्स का मकसद है अपने गांव और कस्बों में जाकर लोगों को सेहतमंद बनाए रखने का, जिसके लिए देश के दूर दराज इलाकों से आकर पैरामेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि इनके लिए रोजगार परक भी हैं। ये रूरल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। यहाँ पे हम लोग पैरामेडिकल कोर्सेज कराते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे गांव से आते हैं जहाँ पे अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं पहुँच पाई हैं। जैसे कश्मीर से आते हैं, लद्दाख से आते हैं, मणिपुर है, नागालैंड है। तो ये बच्चे यहाँ पे कोर्सेज करते हैं, यहाँ से ये ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं और इसको ही अपने गांव में जाके यूटिलाइज़ करते हैं। मैं जम्मू से आकर ये कोर्स कर रही हूँ। ये कोर्स है BSc MLT मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोगों को हेमाटोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। आज पैरामेडिकल कोर्सेज की अहमियत भी काफ़ी बढ़ गई है। मेडिकल के क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले युवाओं के लिए पैरामेडिकल्स एक बेहतरीन करियर ऑप्शन साबित हो रहा है, जहां डॉक्टरी की पढ़ाई के मुकाबले ये कोर्सेज खासा सस्ते हैं, साथ ही इसमें समय भी कम लगता है। जहां आप समय ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि एक ऐसी क्वालिफिकेशन आपके हाथ में आए, एक ऐसी योग्यता आपके हाथ में आए जिसमें आप अपने घर के पास ही रहकर अपने परिवार और आसपास वाले लोगों के लिए कुछ कर सकें, उसमें ये पैरामेडिकल कोर्सेज काफ़ी काम आते हैं। क्योंकि एक तो आपको 3-4 साल 5 साल नहीं लगाने पड़ते, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। पैरामेडिकल स्टडीज़ के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, डेंटल हाइजेनिक्स, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कोर्सेज कराए जाते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थाओं से इन कोर्सेज को करने के बाद पैरामेडिकल प्रोफेशनल किसी भी सरकारी और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त केंद्रों, नर्सिंग होम्स, ब्लड बैंक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, मेडिकल लैब्स में रोजगार पा सकते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट ये बढ़ रहा है, उस हिसाब से पैरामेडिकल वर्कर्स की काफ़ी डिमांड है और पैरामेडिकल वर्कर्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री का फाउंडेशन होता है। अगर टेक्नीशियंस वगैरह नहीं होंगे तो हेल्थ केयर जो डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट देना है। जैसे विलेजेज में कई बार मलेरिया फैल गया या कोई ऐसी महामारी या कम्युनिकेबल डिजीजेज फैलती हैं, तो हमें फिर लैब में ही टेस्टिंग के लिए भेजना होता है और लैब में फिर वो डायग्नोस करते हैं कि कौन सी बीमारी है, क्या है और क्या उसका इलाज है। फिर डॉक्टर ढूंढते हैं उसके लैब टेक्नीशियन के रिपोर्ट के आधार पर। इसलिए पैरामेडिकल वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए या डायग्नोसिस के लिए। इन कोर्सेज को करने वाले कई छात्रों को भारत सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से स्कॉलरशिप भी मुहैया कराई जाती हैं।
चाहे लेह लद्दाख हो, कारगिल हो या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, सिक्किम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को स्पॉन्सर करके हमारे पे भेजती है। गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो भी अपने बच्चों को स्पॉन्सर करती है यहाँ पे, और खासतौर पर जो शेड्यूल कास्ट है, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज है, या उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद ये बच्चे देश के उन दूर दराज इलाकों में जाकर सेवा का कार्य करते हैं जहां आज भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। गांव हर हफ्ते के लिए सचिन सिंह के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव। पैरामेडिकल की फील्ड में काफी कुछ करने के लिए है। करियर के तौर पर आप एक्सरे एक्सपर्ट और ईसीजी इमेजिंग एक्सपर्ट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मेडिकल फील्ड में करियर बनाने की चाह रखने वाली लड़कियों के लिए आज इस फील्ड में कई ऑप्शन सामने आ रहे हैं और इन्हीं ऑप्शंस में से एक है एक्सरे इमेजिंग और ईसीजी। आजकल इस तरह के कोर्सेज का स्कोप काफ़ी अच्छा है। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी इन लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हालांकि मेडिकल फील्ड शुरू से ही लड़कियों का पसंदीदा करियर ऑप्शन रहा है, लेकिन अगर एक्सरे इमेजिंग और ईसीजी की बात करें तो जानकारी की कमी के चलते बहुत कम लोग ही इस फील्ड में अपना करियर बनाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों के बढ़ती अवेयरनेस के चलते इस फील्ड में करियर बनाने वालों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। यहाँ पर एक्सरे एंड ईसीजी का डिप्लोमा कराते हैं, हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट है। इससे हम लोग बाहर किसी भी हॉस्पिटल में अगर अप्लाई करते हैं तो हमें जॉब मिलती है। पिछले कुछ सालों में एक्सरे इमेजिंग और ईसीजी एक्सपर्ट्स की मांग काफी बढ़ी है, जिसके चलते आज कई इंस्टीट्यूट अपने यहाँ एक्सरे और ईसीजी के कोर्सेज की शुरुआत की है, जहां बेहतर पढ़ाई के साथ ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल को देने के लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत है। अच्छे टेक्नीशियन वही होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेंड होते हैं और जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री हो। बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सर्विसेज में, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, एब्रॉड जॉब में आराम से सर्विस कर सकते हैं। उन्हें कहीं भी प्लेसमेंट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हॉस्पिटल्स उनको कॉल करती है और प्लेसमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल कैंपस में वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। हमारे यहाँ 2 कोर्सेज हैं बेसिकली एक्सरे इमेजिंग ईसीजी के। तो एक तो है 1 साल का, दूसरा कोर्स जो है हमारे पास वो है 2 साल का। 1 साल के कोर्स में और 2 साल के कोर्स में, दोनों कोर्स में ही हम एक्चुअली दोनों तरफ से प्रैक्टिकल में और थ्योरी में दोनों तरह की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ पे ईसीजी एक्सरे टेक्निकल कोर्स का डिप्लोमा दिया जाता है स्टूडेंट्स को। हमारे यहाँ पे ओपीडी और ट्रेनिंग दोनों के डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग की जगह ट्रेनिंग कराया जाता है, ट्रेनिंग ओपीडी में दिया जाता है, जो हम पेशेंट्स पे उनको एक्सपोजर दिया जाता है। एक तरफ तो मेडिकल फील्ड में एक्सरे इमेजिंग और ईसीजी एक्सपर्ट के रूप में अपना करियर बनाना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नॉन साइंस बैकग्राउंड की लड़कियों के लिए भी इस फील्ड में अच्छा करियर हो सकता है। जो नॉन साइंस साइड से भी अगर कोई बच्चा आ जाता है उसके लिए हम स्पेशल केयर लेते हैं ताकि उसको दिक्कत ना हो, चाहे इसमें थ्योरी समझने में या प्रैक्टिकल करने में। फिलहाल जॉब कंपटीशन के इस दौर में जहां आज लड़कियों के लिए ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं, वहीं ईसीजी और एक्सरे इमेजिंग एक्सपर्ट के रूप में मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना एक बेहतर विकल्प तो है ही। तो देखा आपने, एक्सरे और ईसीजी इमेजिंग एक्सपर्ट के रूप में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं।